students, today we are starting the fourth unit of your syllabus, and the fourth unit is based on the modulation techniques. Some of the modulation techniques you already studied, so we are not going to discuss about analog modulation and phase modulation and all those things. ASK, PSK, FSK, the basics of all this, modulation techniques, analog as well as digital, you already have studied in your fifth and sixth semester. Okay, so you require the basic background because I am not going to explain about the BSK or FSK or BPSK and ASK techniques. So I guess that you already having the background. We are only going to discuss the specialized modulation technique that is included in your syllabus for wireless communication in this particular series of lectures. Okay, so the first technique is minimum phase shift keying or minimum shift keying. So minimum shift keying is a special type of continuous phase frequency shift keying. इसमें फेज भी रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी रहेगा और ये कंटिन्यूअस टाइप की होगी जो मॉड्यूलेशन टेक्निक है, वेयर इन द पीक फ्रीक्वेंसी डिविएशन इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द बिट रेट. In other words, MSK is continuous phase FSK, मतलब PFSK, with a modulation index of 0.5. The modulation index of an FSK signal is similar to the FM modulation index. जो frequency modulation technique होती है उसके modulation index के equal होता है, जो FX similar होता है जो FSK का जो modulation index होता है, और ये define होता है 2 del f upon RB से, where del f is the peak RF frequency deviation और RB जो है वो bit rate होता है. ये सब जो है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम लोग पढ़ते हैं ASK, PSK, FSK के बारे में कि bit rate क्या होता है, frequency deviation क्या होता है and all those things. A modulation index of 0.5 corresponds to a minimum frequency spacing that allows two FSK signals to be coherently orthogonal, and the name minimum shift keying implies the minimum frequency separation, that is the bandwidth that allows orthogonal detection. इसका मतलब modulation index जो है वो जितना कहना चाहिए कम होगा उतना ही ज़्यादा आपकी स्पेसिंग कम हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल आप जो है वो अकोमोडेट कर पाओगे एक गिवन पॉइंट बैंडविड्थ में. ठीक है, 2 FSK सिग्नल्स VST एंड VLT, 2 FSK सिग्नल लिए गए आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल अगर उनका जो कॉन्वोल्यूशन है वो 0 के इक्वल होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो ये इंटीग्रल वैल्यू के जरिए उस चीज को बताया गया है. ये इक्वेशन हो गया, मिनिमम कंडीशन हो गई. MSK is sometimes referred to a fast FSK as the frequency spacing used is only half as much as that used in conventional non-coherent FSK. MSK is a spectrally efficient modulation scheme and is particularly attractive for use in mobile radio communication systems. It possesses properties such as constant envelope, spectral efficiency, good BER performance and self-synchronizing capability. ये सारे जो हैं MSK के क्या है advantages हैं. An MSK signal can be thought of as a special form of OQPSK, orthogonal quadrature phase shift keying, where the baseband rectangular pulses are replaced with half sinusoidal pulses. ठीक है, अब इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, QPSK आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, उसका भी कोई बैकग्राउंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कोई डिटेलिंग में आपसे पूछेगा भी नहीं. सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि ये जो नीचे 5.104 में इक्वेशन दिया हुआ है वो जो है हाफ साइनोसॉइडल पल्सेस यहाँ से इफ हाफ लास्ट जो लाइन है हाफ साइनोसॉइडल पल्सेस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर पल्सेस द मॉडिफाइड सिग्नल कैन बी डिफाइंड एज MSK. किस तरीके से, ये इसको इस तरीके से यहाँ पे रिप्लेस किया गया. ये जो ऊपर आपको दिख रहा है SMSKT, इसमें जो है ये जो है इसके कारण रेक्टेंगुलर जो क्रिएट होता है ये कॉस आपका साइनोसॉइडल हो गया, उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई किया है, उसको पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया गया है इस चीज से PT से. तो PT क्या है यहाँ पे, साइनोसॉइडल सिग्नल है ना. तो ये साइनोसॉइडल सिग्नल को इस यहाँ पे रिप्लेस किया गया है PT की जगह. ये जो PT है, वेयर PT इज, दिस इज PT. ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन है साइनोसॉइडल का रेक्टेंगुलर फॉर्म का साइनोसॉइडल फॉर्म में, ठीक है, उस तरीके से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं. MIT और MQT है वो इवन और ऑड बिट्स हैं बाइपोलर डेटा के अंदर. डेटा जो है वो बाइपोलर फॉर्म में ही रहेगा और बाइपोलर फॉर्म में ही आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा. बाइपोलर फॉर्म के अपने एडवांटेजेस भी हैं क्योंकि हम लोग 1-0 अलग अलग डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो आप इसको अगर देखें थोड़ा सा ऊपर जाएंगे
और हम लोग उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ से, तो ये जो स्ट्रीम है इसकी जो वैल्यूज हैं वो +-1 के अकॉर्डिंग होती है इन फेस एंड क्वाड्रेचर आर्म्स ऑफ द मॉड्यूलेशन रेट RB/2. It should be noted that there are a number of variations of MSK that exist in the literature. For example, while one version of MSK uses only positive half sinusoid as the basic pulse shape, another version uses alternative positive and negative half sinusoid as the basic pulse shape. तो alternating भी हो सकता है, continuous भी हो सकता है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो continuous है। However, all variations of MSK are continuous phase FSK employing different techniques to achieve spectral efficiency. अब यहाँ पे alternating और continuous बोलने का ये मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए 1-1 की बीट की स्ट्रीम एक साथ चलेगी, 0-0 की एक साथ चलेगी, और अगर मैं alternating बोलूंगा तो एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 0, इस तरीके से जो है हम लोग उसकी कीइंग को परफॉर्म करेंगे, है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। बाकी स्पेक्ट्रल डेंसिटी के बारे में आपको कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है, एमएसके का पावर स्पेक्ट्रम भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। देखिए, क्यूपीएसके और ओक्यूपीएसके को एडवांस टेक्निक माना गया है इन टर्म्स ऑफ द मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, ठीक है। एमएसके का उसके ऊपर क्या एडवांटेजेस आप देख सकते हैं, ये जो डॉटेड लाइंस है, ये जो ऊपर डॉटेड लाइंस हैं, ये आपको बता रहा है क्यूपीएसके और ओक्यूपीएसके के बारे में, लेकिन एमएसके की लाइंस जो है नीचे हैं। तो आप देख सकते हैं ये है आपका पावर, है ना। तो पावर जो है रिड्यूस होता है इन केस ऑफ एमएसके। आप देखिए यहाँ पे पावर कंजम्पशन कितना है, -10 dB है, यहाँ पे कितना हो गया है 20 से 30, 40 और रिड्यूस होते जा रहा है, ठीक है। तो ओवर द स्पेक्ट्रम ऑफ टाइम पावर जो है वो रिड्यूस हो जाता है इन केस ऑफ एमएसके, ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। तो पावर स्पेक्ट्रम के टर्म्स में ये जो एनालिसिस दिया हुआ है इसको भी आप एक बार पढ़ सकते हैं, बट जैसे मैंने बोला कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। ये फिगर आप ध्यान में रखिए, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कंपैरिजन क्या है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का दूसरे टर्म से, ठीक है। एमएसके के ट्रांसमीटर और रिसीवर को पढ़ना है। फिगर 5.39 shows a typical MSK modulator. Multiplying a carrier signal with cos pi t upon 2t produces two phase coherent signals fc plus 1/4t and fc minus 1/4t. 1/4t कैसे आया है मैंने आपको बता दिया कि 1/4 ऑफ द बिट रेट होने के कारण 1/4t वहां पे आता है। These two FSK signals are separated using two narrow band pass filters and appropriately combined to form the in phase and quadrature carrier components xt and yt respectively. QPSK का एडवांस वर्जन है, OQPSK का एडवांस वर्जन है MSK, जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा इंट्रोडक्शन में। These carriers are multiplied with the odd and even bit stream, जिसको हम MIT और MQT बोल रहे हैं, to produce MSK modulated signal। तो ये है प्रोसेस कि MSK modulated signal कैसे बनाएंगे, ठीक है। The block diagrams of an MSK receiver is shown in figure 5.40। अगले पेज पे हम लोग देखते हैं ये दोनों फिगर्स को। अभी आप प्रोसेस समझ लीजिए कि किस तरीके से मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन होता है। The received signal SMSK-T in the absence of the noise or interference is multiplied by the respective in-phase and quadrature carriers XT and YT. The output of the multipliers are integrated over 2-bit periods and dumped to a decision circuit at the end of each 2 periods based on the level of the signal at the output of the integrator. ठीक है। The threshold detector decides whether the signal is 0 or 1. तो जो काम ट्रांसमिशन में होगा उसका जस्ट अपोजिट कहाँ पे होता है, रिसीवर में होता है ना। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम मॉड्यूलेट करते हैं तो जो मॉड्यूलेशन के ब्लॉक्स होते हैं उसका जस्ट अपोजिट ब्लॉक्स कहाँ पे आता है, डीमॉड्यूलेशन में आता है, इज इट नॉट। पहले आप कैरियर फ्रीक्वेंसी मिक्स करते हो, कैरियर फ्रीक्वेंसी मिक्स करने के बाद देखते हो कि उसकी पावर उतनी है कि नहीं, उसके हिसाब से आप उसको क्या करते हो, गेन प्रोवाइड करते हो, फिर आप देखते हो कि कौन सी फिल्टरिंग यूज करेंगे तो फिल्टर लगाते हो, फिर आप उसको ट्रांसमिट करते हो गेन बूस्ट करके। उसके बाद मॉड्यूलेशन जब हम डीमॉड्यूलेट करते हैं तो एनकोडर भी यूज करते हैं हम, है ना। तो उसको डिकोड करेंगे, उसका पावर हटाएंगे, उसकी फिल्टरिंग हटाएंगे और फाइनली हम डिटेक्ट करेंगे कि 0 या 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये डिजिटल टेक्निक्स की बात होगी। एनालॉग में ऐसा नहीं होता है, एनालॉग में थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग अप्रोच लेते हैं क्योंकि एनालॉग में 1-0 का कंसेप्ट नहीं। तो उस तरीके से अगर हम इसको देखें तो यहां से ये होता है। तो बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ द सिग्नल एट द आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर, जैसा 0 या 1 डिटेक्ट करेगा उस हिसाब से वो आउटपुट ले लेते हैं। आउटपुट डेटा स्ट्रीम्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू MIT एंड MQT व्हिच आर ऑफसेट कंबाइंड टू ऑब्टेन द डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। ये जो है ओके,
ये थोड़ा सा यहाँ पे माउस प्रॉब्लम कर रहा है, जस्ट अ मिनट, आगे चलते हैं। ट्रांसमीटर रिसीवर हम लोगों ने पढ़ लिया है, मैं इसका आपको डायग्राम बता देता हूँ। और ये टॉपिक यहाँ पे, ये देखिए ट्रांसमीटर का डायग्राम है। ये है आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी, ये है आपका सिग्नल। कैरियर फ्रीक्वेंसी और सिग्नल को हमने इस तरीके से कंबाइन किया कि हमको FC प्लस 1/40 और FC माइनस 1/40 के बिट्स मिले। बैंड पास फिल्टर से उसको आगे मॉड्यूलेटर में भेज दिया, मॉड्यूलेटर को क्रॉस मॉड्यूलेशन यूज करके आगे हम लोगों ने यहाँ पे एक सिग्नल को इससे मिक्स किया, ऑड और इवन सिग्नल को। ये जो सिग्नल आ रही है इसके आउटपुट हैं, यहाँ से XT और YT ऑर्थोगोनल और MIT के साथ मिक्स करके हम फिर फाइनल आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, ये MSK का ट्रांसमीटर है और ये है उसका रिसीवर। रिसीवर में हमारे पास MSK सिग्नल आया, उसको फिर XT और YT जो ओरिजिनली हमारे पास था सिग्नल अवेलेबल, उसको यहाँ से मिक्स किया, उसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद हम लोगों ने एक कीइंग यूज की। ये की है एक, है ना, जो ऑफ या ऑन होती है डिपेंडिंग अपॉन दी टाइम सीक्वेंस वी आर गिविंग। थ्रेशोल्ड डिवाइस है जो ये डिसाइड करता है कि कितने थ्रेशोल्ड तक का सिग्नल हमको एक्सेप्ट करना है, और फिर हमको MIT और MQT मिल जाता है, वही ऑड और इवन बिट्स जो हमने मिक्स की थी पहले एट दी ट्रांसमीटर एंड। तो दिस इज ऑल अबाउट MSK। GMSK जो होता है वो है गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग। अब what is Gaussian? GMSK is a simple binary modulation scheme which may be viewed as a derivative of MSK. In GMSK, the side lobe levels of the spectrum are further reduced by passing the modulating NRZ data waveform through a pre-modulation Gaussian pulse shaping filter. तो एक एडिशनल फिल्टर हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें, जो कि गॉसियन फिल्टर है, गॉसियन नेचर का फिल्टर है। और ये क्या कर रहा है, फर्दर रिड्यूस कर देता है आपके कहना चाहिए साइड लोब लेवल्स को, जिससे और भी पावर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो GMSK एडवांस टेक्निक होगी किसकी, MSK की। MSK किसकी एडवांस टेक्निक थी, FSK और PSK की, मतलब QPSK की एडवांस टेक्निक थी MSK, और MSK की एडवांस टेक्निक कौन सी है, GMSK। व्हाट इज द एडवांटेज, आगे और देखेंगे। अभी हमको ये पता चल रहा है कि GMSK जो है वो पावर लेवल को और रिड्यूस करता है, क्योंकि जो साइड लोब की फ्रीक्वेंसीज हैं उनको वो और फिल्टर आउट कर देता है। ठीक है, baseband Gaussian pulse shaping smooths the phase trajectory of the MSK signal and hence stabilizes the instantaneous frequency variation over time. This has the effect of considerably reducing the side lobe levels in the transmitted spectrum, as I said. So pre-modulation, just a minute, pre-modulation Gaussian filter converts the full response message signal, where each baseband symbol occupies a single bit period T, into a partial response scheme where each transmitted symbol spans several bit periods. However, since pulse shaping does not cause the pattern average phase trajectory to deviate from that of the MSK or GMSK can be coherently detected just as in the MSK signal, or non-coherently detected as simple the FSK. डिपेंड करेगा कि कौन सा पैटर्न हम लोग यूज कर रहे हैं उसके फेस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये सिंपली एक MSK भी हो सकता है या FSK भी हो सकता है, कोहेरेंसी और नॉन कोहेरेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इन प्रैक्टिस GMSK इज मोस्ट अट्रैक्टिव फॉर इट्स excellent power efficiency due to the constant envelope and its excellent spectral efficiency. तो GMSK के बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं ये, इसकी पावर एफिशिएंसी और इसकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। क्यों, क्योंकि साइड लोब जो फ्रीक्वेंसी लेवल्स हैं वो क्या हो गए हैं, साइड लोब जो फ्रीक्वेंसी और स्पेक्ट्रल लेवल्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं इसमें। द प्री मॉड्यूलेशन गॉसियन फिल्टर introduces ISI in the transmitted signal, but it can be shown that the degradation is not severe if the 3 dB bandwidth bit duration product of the filter is greater than 0.5. ISI मतलब इंटरफेरेंस है, सिग्नल का इंटरफेरेंस इंट्रोड्यूस होता है इस फिल्टर के कारण। ऑब्वियसली जब भी हम फिल्टर यूज करते हैं तो जो फिल्टर आउट सिग्नल है वो ओरिजिनल सिग्नल तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि उसका नॉइज हटाएं, लेकिन ऐसा करते समय कुछ कुछ चीजें और भी जो है वो अफेक्ट हो जाती। तो उस इंटरफेरेंस की बात है, इंटरबिट इंटरफेरेंस जो होता है उसके अंदर वो उसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर हम 3 dB बैंडविड्थ वाला अगर हम लोग फिल्टर यूज करें जिसका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो 0.5 से ज्यादा ना हो, तो हम इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। GMSK sacrifices the irreducible error rate caused by the partial response signaling in exchange for extremely good spectral efficiency and constant envelope properties.
तो एडवांटेजेस क्या हैं? स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी और एनवलप प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? इररिड्यूसिबल एरर रेट कॉज्ड बाय पार्शियल रिस्पांस सिग्नलिंग। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। कहीं ना कहीं हमको ट्रेड ऑफ को एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है अगर एक चीज को हमको दूसरे के ऊपर प्रेफर करना है। ये फिल्टर का इंपल्स रिस्पॉन्स है जीएमएसके का, आप सिर्फ इसको पढ़ लेंगे, इसका डेरिवेशन रखने की कोई जरूरत नहीं है। 5.108 जो इक्वेशन है, ट्रांसफर फंक्शन जो है इस तरीके से देते हैं हम 5.109 में, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके बताई गई है। ठीक है, कि इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। GMSK filter may be completely defined from B and the baseband symbol duration T. It is therefore customary to define GMSK by its BT product. ठीक है, Figure 5.41 shows the simulated RF power spectrum of the GMSK signal. Power spectrum देख लेते हैं इसका। तो 0.2, 0.25, 0.5 ये डिपेंडिंग ऑन दी BT इसका जो है हम लोगों ने निकाला हुआ है टेबल। Occupied RF bandwidth containing a given percentage of power. Notice that GMSK is spectrally tighter than MSK. तो इस तरीके से इसको निकाला गया है। ये स्पेक्ट्रल डेंसिटी जैसे वहां पे भी प्लॉट की गई थी, अलग अलग वैल्यूज पे इसको प्लॉट किया गया है। इसको प्लॉट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, सिर्फ इसकी ज्यादा डिटेलिंग की गई है। जीएमएसके का बिट एरर रेट इसको भी डिफाइन किया गया है। जो बिट एरर रेट इसका डिसएडवांटेज है उसको भी यहाँ पे डिफाइन करके बताया गया कि द बिट एरर रेट फॉर जीएमएसके वाज फर्स्ट फाउंड इन, ये जो पेपर है जो 81 में पब्लिश हुआ उसमें इसको फाइंड आउट किया गया था फॉर AWGN चैनल्स, है ना, एंड इट वाज शोन that to offer performance within 1 dB of optimum MSK when BT is 0.25. The bit error probability is a function of BT since the pulse shaping impacts ISI. The bit error rate probability for GMSK is given by this. जो है इसके लिए सिग्मा जो है कांस्टेंट रिलेटेड टू BT। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है गामा की, सॉरी सिग्मा बोल दिया था मैंने, गामा की वो 0.68 होती है जब BT 0.25 हो और 0.85 होती है सिंपल MSK के लिए। वहां पे BT डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, BT स्पेशली आता है जब हम किसकी बात करते हैं, GMSK की बात करते हैं। BT की डेफिनेशन हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में पढ़ ली है GMSK की। अब GMSK के ट्रांसमीटर रिसीवर में क्या चेंज आता है, सीधे हम लोग ट्रांसमीटर रिसीवर के डायग्राम में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले इसका ट्रांसमीटर है, जो भी एनआरजेड डेटा आएगा उसको गॉसियन लो पास फिल्टर से हमको पास आउट करना है, उसके बाद फिर एफएम ट्रांसमीटर यूज करना है। जब हम ये चीजें यूज करते हैं तो जीएमएसके हमको आउटपुट में मिलता है एट दी रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और उसको डिटेक्ट करने के लिए भी फिर उसी तरीके का आपको डीमॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करना पड़ेगा। ये थ्योरी आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये रिसीवर का डायग्राम है। ठीक, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। मॉड्यूलेटेड इनपुट फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, यहाँ से दिया जा रहा है, फिर उसको π2 की फेज शिफ्टिंग की जा रही है। देखिए यहाँ पे π/2 अप्लाई किया गया है ना, 90 डिग्री की फेज शिफ्टिंग है। फिर लो पास फिल्टर से उसको पास आउट किया गया है। फिर यहाँ पे 90 डिग्री की फेज शिफ्टिंग है क्लॉक रिकवरी के लिए, फिर समेशन करके और ये सब एडर्स का यूज करके डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल लाया गया। ये जो है ये एनआरजेड फिल्टरिंग के लिए है ना। जो एनआरजेड फिल्टरिंग हम लोग यूज करते हैं ट्रांसमीटर में, उसको फिर क्या करना पड़ेगा, डिकोड करने के लिए उसको हमको आउटपुट में भी अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, फिर इसको ज्यादा डिटेलिंग में बताया गया है, खैर हमको इसको नहीं पढ़ना है, ऊपर वाला डायग्राम आप लोग पढ़ लेंगे, बना लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज एमएसके एंड व्हाट इज जीएमएसके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एमएसके ओवर क्यूपीएसके एफएसके, है ना, एंड हाउ इट modifies or it gives the better output in comparison with the other modulation techniques which were invented earlier than the MSK। और GMSK में आपको ये पूछेगा कि GMSK का MSK के ऊपर क्या एडवांटेज। ये जो एनआरजेड फिल्टरिंग है, जो साइड लोब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उनके बारे में डिटेलिंग आपसे पूछ सकता है। ट्रांसमीटर रिसीवर के डायग्राम आपसे पूछे जा सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट MSK एंड GMSK। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और टेक्निक्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।